السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کا احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ یونان میں کشتی کا المناک حادثہ، وزیر اعظم کا کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا، جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل۔ متاثرہ پاکستانی خاندانوں کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ یونان کشتی حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر آزاد کشمیر میں یوم سوگ، پرچم سرنگوں، فضا سوگوار۔ جاں بحق افراد کے جسد خاکی واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی انسانی اسمگلرز اور ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے والا ایجنٹ کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار۔ ملزم آذربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، FIA۔ دھاندلی کے ذریعے مسلط بیرونی ایجنٹ نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا، تعمیر و ترقی کے سفر کو روکا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور دفاعی تنصیبات پر حملے کیے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ 2018 میں رکنے والا ترقی کا سفر دوبارہ شروع کیا ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود کا DI خان میں خطاب۔ گوادر سے خنجراب تک تمام بڑے منصوبوں پر محمد نواز شریف کا نام لکھا ہے۔ ترقی کا جو سفر گزشتہ 4 سال رکا رہا، اسے دوبارہ شروع کیا۔ 1 سال میں مقامی کوئلے سے 2000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ معاشی ترقی کا روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ وفاقی وزراء خرم دستگیر اور احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب۔ اسکرین ٹورزم ملک کے مثبت تشخص اور ثقافت کو اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیز سے فلم انڈسٹری بحال ہو رہی ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے فلم فائنانس فنڈ قائم کیا۔ فلم، ڈاکیومنٹری اور ڈرامہ تیار کرنے پر فنڈز دیے جائیں گے۔ سنیما گھروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری کیا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ سیکیورٹی فورسز کی درہ آدم خیل میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی۔ انتہائی مطلوب کمانڈر ظفر عرف ظفری 2 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ دہشت گرد کمانڈر سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ پاکستان کا ایک اور دشمن جہنم واصل۔ کالعدم BLF کمانڈر نواز علی رند اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ ہلاکت ہمسایہ ملک میں پراسرار حالات میں ہوئی۔ آواران سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد 2014 سے تنظیم کا سرکردہ رکن تھا۔ سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ کشمیری حریت رہنماؤں کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران کے وفد کا بھی جناح ہاؤس کا دورہ۔ افواج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی ضامن ہیں، ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، شرکاء کا عزم۔ سارے واقعات ہوئے ہیں، یہ جو آرمی کے اگینسٹ یہ جلاؤ گھراؤ، آپ یقین کریں اتنے دکھ کی بات ہے، اتنے دکھ کی بات ہے کہ مجھے، اور میں اتنا روئی تھی کہ جواد کی شہادت کے بعد شاید میں اب اتنا روئی ہوں۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ کیپٹن قاضی جواد انتہائی نڈر آفیسر تھے۔ 26 جولائی 1999 کو کارگل کے محاذ پر جمع مردی اور دلیری سے دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मजीद 85 इजाफी कंपनियां तायनात। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से 1,07,903 बच्चे यतीम और 23,000 के करीब खवातीन बेवा हो चुकी। मावराए अदालत कत्ल, दौरान हिरासत तशद्दुद और जबरी गिरफ्तारियां मामूल बन गया। भारतीय अफवाज में खुदकुशियों के बढ़ते हुए वाकयात, खवातीन अफसरान भी खुदकुशी पर मजबूर। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3,300 से जायद फौजी खुदकुशी कर चुके। पिछले 5 सालों में 800 से जायद भारतीय जवानों ने सीनियर्स के रवैये से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा ईरान, सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर मुज़ाकरात। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। यमन से 7 साल बाद पहली हज परवाज 200 आज़मीन को लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। जद्दा के हवाई अड्डे पर आज़मीन हज का शानदार इस्तकबाल। 2016 में सना के हवाई अड्डे को तिजारती परवाजों के लिए बंद किए जाने के बाद ये पहली परवाज है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी हम मनसब शिंग वांग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। 2018 के बाद किसी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीन का ये पहला दौरा है। शिमाली भारत में गर्मी की शदीद लहर, हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। उत्तर प्रदेश में 54 जबकि बिहार में 44 अफराद हलाक। हीट वेव से मुतासरा 400 से जायद अफराद अस्पताल मुंतकिल। ज्यादातर अमवात ब्रेन स्ट्रोक और डायरिया की वजह से हुई। 26वीं स्पेशल ओलंपिक गेम्स का मेला सज गया। बर्लिन में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, कौमी दस्ते की शिरकत। ओलंपिया स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दस्ते में 54 मर्द और 33 खवातीन खिलाड़ी शामिल। वजीर आजम का खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मालदीव में 5 मुल्की इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मुकाबले मंगल को खेले जाएंगे। और जिम्बाब्वे में क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इफ्तिताही मैच में मेजबान टीम की नेपाल के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। 10 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। 2 टीमें रवा साल भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूनान में कश्ती डूबने के हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का सख्त नोटिस लेते हुए इस वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। और वज़ीर आज़म ने कल यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया है। यौम सोग के मौके पर कौमी परचम सरनगू रहेगा और जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। बहिराए रूम में यूनान के साहिल पर 14 जून को किश्ती डूबने के वाक़ये में खदशा है कि दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बताया जा रहा है कि कश्ती में सवार ज्यादातर पाकिस्तानी थे। हुकाम के मुताबिक जुनूबी साहिली कस्बे पायलोस से 80 किलोमीटर के फासले पर हादसे का शिकार होने वाली किश्ती में तकरीबन 750 अफराद सवार थे, जिनमें 104 अफराद को बचा लिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किश्ती डूबने के हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का सख्त नोटिस लेते हुए सोमवार को मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म प्रेस विंग की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी परचम सरनगो रहेगा और जाँ बहक होने वालों के लिए खसूसी दुआ की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाक़ये की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी भी तश्कील दी है। नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए, जबकि वज़ारत खारजा की अफ्रीका
امریکہ کے بارے میں ایڈیشنل سیکرٹری جاوید احمد عمرانی، آزاد جموں کشمیر پونچھ ریجن کے DIG سردار زہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری FIA فیصل نصیر کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی کی جانب سے عالمی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے تعاون اور اشتراک عمل کی تجاویز دی جائیں گی۔ فوری، درمیانی اور طویل المدتی قانون سازی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ایسے واقعات کا سبب بننے والے افراد، کمپنیوں اور ایجنٹس کو سخت ترین سزائیں دینے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس سے قبل دفتر خارجہ کو کشتی الٹنے اور اس میں پاکستانیوں کی ممکنہ موجودگی کی اطلاعات پر فوری کارروائی کرنے اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات فوری مہیا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ متاثرہ پاکستانی خاندانوں کے لیے فوری طور پر ہیلپ ڈیسک قائم کر کے انہیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے یونان اور مصر میں پاکستانی سفیروں کو ہنگامی اقدامات کرنے اور وفاقی وزیر داخلہ کو اپنے اداروں کے ذریعے تفصیلات جمع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں پائے جانے والے ملوث ایجنٹس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یونان میں کشتی کے المناک حادثے میں آزاد کشمیر کے شہریوں کے جاں بحق ہونے پر آزاد کشمیر بالخصوص ضلع کوٹلی کی فضا سوگوار رہی۔ یونان سانحے پر آج ریاست بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ مزید تفصیلات عدیل احمد خان سے۔ یونان میں کشتی حادثے کے المناک واقعے پر آزاد کشمیر میں آج یوم سوگ منایا گیا۔ یوم سوگ کے دوران آزاد کشمیر کا ریاستی پرچم سرنگو رہا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے المناک واقعے میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہدایت کی کہ آزاد کشمیر میں کام کرنے والے انسانی اسمگلروں اور ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے اور جاں بحق افراد کے جسد خاکی واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے اور متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان بھی غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کے لیے کھوئی رٹا پہنچے اور یونان سانحے میں جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین سے ملاقات کی اور سانحے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یونان میں پیش آنے والا واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی جانوں سے نہ کھیلیں۔ یہ میں صبح ملوں گا ابھی میں وزیر امور کشمیر سے بھی اور خاص طور پر وزیر داخلہ سے کہ جو لوگ اس ہیومن اسمگلنگ کے اس مکروہ دھندے میں جو لوگ شامل ہیں انہیں قرار واقع سزا دی جائے کہ یہ ہمارے گھر بار نہ اجاڑیں، یہ ماں باپ سے ان کے لخت جگر نہ چھینے، بیوی سے اس کا خامد کو نہ چھینے، بچوں سے اس کے باپ کو نہ چھین سکے، بہنوں سے بھائیوں کو نہ چھین سکے۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ تو میں آیا ہوں ان کے لیے اسی لیے ان سے معلومات بھی لے سکوں، ان کے ساتھ یکجہتی کی ہمدردی کا اظہار بھی ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے حکومت پاکستان سے کیمپوں میں موجود نوجوانوں کی واپسی کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کل ملک بھر میں یوم سوگ منانے کے وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مریم نواز نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ ناظرین، پاکستانی نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے پاکستانی نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے والے ایجنٹ کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق ملزم آذربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم گزشتہ کئی ماہ سے روپوش تھا۔ ملزم متعدد شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا بھجوانے میں ملوث تھا۔ ملزم کو FIA نے گجرات کے حوالے کر دیا ہے۔ سربراہ PTM مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں دھاندلی سے ایک شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا جس نے ملک کی ترقی کے سفر کو روکے رکھا۔ مزید تفصیل بتائیں گے علی گل اپنی رپورٹ میں۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے گزشتہ حکومت کے جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جدوجہد سے اس شخص کو اقتدار سے ہٹایا جس نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے احتجاج کے نام پر حساس تنصیبات پر حملے کیے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ ترقی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اور بعد میں بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو جام کیا۔ 3.5 سال ہم نے مقابلہ کیا، عوام کو اٹھایا، ملک کو جگایا، شعور بیدار کیا اور آج ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا ہے اور پارلیمنٹ کے راستے سے اٹھا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا کہ 2018 میں رکنے والے ترقی کے سفر کو موجودہ حکومت نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ ہم بلا تفریق عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تم اس قوم کو گمراہ مزید نہیں کر سکتے۔ یہ وہی منصوبے ہیں جو 2017 کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اس ضلع کے اندر اعلان کیے اور تم نے 3.5 سال ان منصوبوں کو روکا۔ اب تم کہو گے کہ زرعی یونیورسٹی کا منصوبہ بھی میرا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ قوم جانتی ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس میں میاں نواز شریف صاحب نے زرعی یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 36 کلومیٹر مفتی محمود چوک تک قریشی موڑ بائی پاس، 18 کلومیٹر قریشی موڑ تارمک اور 4 کلومیٹر کوٹلہ سیداں تا مشن موڑ روڈ کی بحالی کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نارووال میں تعمیراتی ڈویژن کا افتتاح، شہریوں کو بجلی سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے سیالکوٹ نہیں جانا پڑے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء احسن اقبال اور انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ ترقی کے جس سفر کو گزشتہ نااہل حکومت نے فل سٹاپ لگا دیا تھا اسے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تفصیل شیئر کریں گے فہد عزیز۔ نارووال میں گیپکو کنسٹرکشن ڈویژن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ملک میں جاری ترقی کے سفر کو سازش کے تحت روک کر ایک نااہل ٹولے کو مسلط کیا گیا۔ گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کے بجائے نفرت کو پروان چڑھایا گیا۔ مسلم لیگ نون نے سیاست کو ریاست پر قربان کیا۔ اس شخص نے سوائے ذاتی انا کے، ذاتی نفرتوں کے، انتقامی کارروائیوں کے 4 سالوں میں کوئی ایک منصوبہ نہیں بنایا۔ اس نے ترقی کی موٹر وے نہیں تعمیر کی، اس نے نفرتوں اور انتقام کی موٹر ویز تعمیر کی۔ اس نے ملک میں توانائی کے نئے کارخانے نہیں لگائے، اس نے ملک میں انتقامی کارروائیوں کے پاور ہاؤس لگا کر اپوزیشن کی ساری قیادت کو چن چن کر جیلوں کے اندر بند کیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا کہ ملک بھر میں بجلی سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے اور 1 سال میں مقامی کوئلے سے 2000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے قائم کیے۔ ترقی کا جو سفر گزشتہ 4 سال رکا رہا اسے ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ گوادر سے پنجراب کی پہاڑوں تک آپ کو کوئی بڑا ترقی کا منصوبہ نظر آئے گا، اس پر نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے، شیر کا نشان ہے اس کے اوپر۔ صرف 1 سال میں ہم نے تھر سے پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی کے 2000 میگا واٹ شامل کی ہے سسٹم میں۔ کراچی میں جو جوہری توانائی ہے، نیوکلیئر ہے، اس کا 1100 میگا واٹ K3 کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل وفاقی وزراء احسن اقبال اور انجینئر خرم دستگیر خان نے گیپکو کنسٹرکشن ڈویژن کا افتتاح کیا۔ منصوبے پر 14 کروڑ لاگت آئی ہے جس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نارووال۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پاکستان کے بیانیے کو صرف اسکرین ٹورزم سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ فلم کے شعبے میں 5 سے 10 سال کے لیے بہت سی مراد دی گئی ہیں۔ آسٹریلیا روانہ ہونے والے نیشنل امیچور فلم فیسٹیول ایوارڈ کے لیے ہائی اچیور سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ برس جب دوبارہ ہماری حکومت آئی تو وزارت اطلاعات کے تحت فلم ڈویژن کا آغاز کیا۔
इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर जीरो टैक्स है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 अरब रुपए के फिल्म फाइनेंस फंड का भी ऐलान किया है। फिल्म फाइनेंस फंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से पैदा होने वाले खला को कम करेगा। बड़े मीडिया हाउसेस ने फिल्में बनाई, ISPR ने फिल्म्स बनाई और उसकी वजह से एक रिवाइवल इंडस्ट्री की शुरू हो गई। लेकिन जो एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक ऑन इट्स ओन, वो नहीं हो रही फिल्म के अंदर, क्योंकि हमारे सिनेमाज नहीं हैं। जो एलीट कैप्चर है एंटरटेनमेंट के ऊपर के जो आपके मल्टी स्क्रीन सिनेमाज भी हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इज़ चैलेंज फॉर जनरल पब्लिक टू गो वॉच फिल्म्स। तो उसके लिए 2017 में गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान की पहली फिल्म पॉलिसी, एक पूरा विजन देती है कि कैसे ये पूरी दुनिया में उन कंट्रीज़ में जहाँ फिल्म स्ट्रगल किया, फिल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने, म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, उनका रिवाइवल कैसे हुआ और किन कंट्रीज़ के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वो कैसे लास्ट 10 years के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है। दिस वाज द विजन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, जिसको 2018 में हमने बजट के इंसेंटिव्स में इंक्लूड किया। लेकिन दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट लास्ट ईयर आई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर ये सब्जेक्ट है, डेम्प के हेड बैठे हैं जहाँ फिल्म डिवीज़न है, फिर PTV के MD बैठे हैं जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, वहाँ भी फिल्म डिवीज़न स्टार्ट की आते ही। और जो सबसे बड़ा काम है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो टैक्सेशन के ऊपर है, कि अगर आप में से कोई भी फिल्म बनाएगा उस पर जो इनकम होएगी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। नाज़रीन, इस्लामाबाद इसके मुज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ जाता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ वेलकम बैक नाज़रीन, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ज़ुमर कचकज़ई बजट पेश करेंगे। देखते हैं वक़ार अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान बजट 2023-24 शेड्यूल में तब्दीली के बाद 19 जून को पेश किया जाएगा। मुमकिन तौर पर 150 अरब रुपए खिसारे के साथ माली साल 2023-24 के लिए 750 अरब रुपए से जायद का बलूचिस्तान का बजट पेश किया जा सकता है। बजट में 250 अरब रुपए तरक्याती जबकि 500 अरब रुपए से जायद गैर तरक्याती अखराजात की मद में रखे जा सकते हैं। नए माली साल के दौरान स्ट्रेट ट्रांसफर्स और डिविजिबल पूल से बलूचिस्तान को 480 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम की मद में सबसे ज्यादा 90 अरब, हेल्थ सेक्टर में 60 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 53 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंडाउमेंट फंड और पेंशन फंड के लिए 2-2 अरब, फूड सिक्योरिटी और अवामी एंडाउमेंट फंड के लिए 1-1 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। सेहत कार्ड के लिए 5.8 अरब और मेडिसिन के लिए 2.7 अरब रुपए मख्तस हो सकते हैं।
बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तरह मुमकिन है। 5 साल के दौरान मीर ज़हूर बुलेदी ने पहले 3 बजट पेश किए, चौथा सरदार अब्दुल रहमान केतरान ने, जबकि ज़मरुख खान अचकज़ई 5वां बजट पेश करेंगे। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। दहशत गर्दों के खिलाफ नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दराए आदम खेल में कलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशत गर्द कमांडर जफर उर्फ जफरी को उसके ग्रुप समेत हलाक कर दिया। 16 और 17 जून की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। जफर उर्फ जफरी के साथ हलाक होने वाले 2 दीगर दहशत गर्दों की शनाख्त हसन खान वल्द मोहम्मद इमरान और अनस उर्फ अली के नाम से हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर रिवायती ऑपरेशनल तरीक़ाकार अपनाते हुए दहशत गर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द जफरी दराए आदम खेल के गांव मिलान का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द 22 मई 2023 को अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से पेशावर पहुंचा था, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिका मेंबर भी रह चुका है। हलाक दहशतगर्द जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों, सिक्योरिटी फोर्सेस, कोयले के ठेकेदारों और ताजरों पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द जफरी भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान से 100 मिलियन से जायद रकम भी हथिया चुका था। हलाक दहशतगर्द हसन खान स्नाइपिंग और ग्रेनेड हमलों का माहिर था। दहशतगर्द हसन खान 2019 से 2021 तक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा रहा। वो कई बार अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार जाता रहा और 2022 में तारिक ग्रेड ग्रुप में शामिल हुआ। दहशतगर्द अनस 2018 से माहिर स्नाइपर की हैसियत से शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। मकामी लोगों की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन जारी है। और पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल कलदम BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में हलाक हो गया। नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवरान से था, जिसकी हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई है। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवारान से था और वो 2014 से ही BLF का सरकर्दा रुकन था। नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस था। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद बरेस को शदीद नुकसान पहुंचा था। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार हैं। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स को मारने लगी हैं। कुछ दिन कबल जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ महमद में भी इसी तरह के हालात का शिकार हुआ था। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत इशारा है कि मुल्क दुश्मनों को सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। इस तरह के वाक़यात से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में वाज़े कमी आएगी। नाज़रीन, 9 मई को जिन्ना हाउस पर होने वाले अफसोसनाक हमले की मजम्मत करने के लिए जिन्ना हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। जिन्ना हाउस आए मुख्तलिफ वफूद के बारे में मज़ीद जानते हैं मौज़ूमुद्दीन की इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने वफ्द के हमरा जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात पर हर कोई गमज़दा है। प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ वो दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरी एक हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम इस दिन को यौम सियाह के तौर पर याद रखेंगे। 9 मई का जो वाकया हुआ, जो शर पसंदों ने जो शर अंगेजी की, जहाँ पाकिस्तानी अवाम रंजीदा हुई, वहीं मकबूजा कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया में बसने वाले तमाम कश्मीरियों के दिल छलनी हो गए। उन शहीदों ने जिन्होंने अपनी जवानी मुल्क के लिए कुर्बान की और बेहुरमती की गई उनके मजसूमों के साथ, उन यादगारों के साथ, ये किसी भी मुहब्बी वतन पाकिस्तानी को, किसी भी शहरी को जो है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस मौके पर वफ्द में शामिल इंजीनियर मुश्ताक महमूद और मोहम्मद अबू बकर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, जिनकी बदौलत आज हम सुकून से सोते हैं। इस हाल में नहीं हूँ। यहाँ जो हमने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गजा में हूँ, जैसे मैं मकबूजा कश्मीर आया हूँ, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दिली रवाबित है। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने कभी कश्मीरियों को अकेले नहीं छोड़ा कि गर कोई समझे बहक जाएंगे हम,
तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे कबल निजी यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तलबात और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द ने भी जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने 9 मई के अफसोसनाक वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि किसी को भी वतन अजीज के शोहदा और कौमी एहसासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान दुश्मनाना सिर जान ले कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में 25% इजाफा किया है। अब आने वाला जो वजीफा है सहमाई, उसमें 9,000 रुपए का वजीफा अदा किया जा रहा है। ये अदायगियाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मखसूस कैंपों पर पीर 19 जून से की जा रही हैं। याद रहे कि बेनज़ीर कफालत की सहमाही किस्त के साथ साथ बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के जनवरी से मार्च की किस्त भी जारी की जा चुकी है। अगर आपके बच्चे का बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में इंदराज है तो आप तालीमी वज़ाइफ की रकम वसूल करें। ये वज़ाइफ वसूल करते वक्त अपनी रकम गिनना और उस रकम की रसीद लेना ना भूलें। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 0800-264-7777 पर कॉल करें। वेलकम बैक नाज़रीन, शरपसंद गोहर रहमान के भाई तारिक हुसैन की आवाम से चेयरमैन पीटीआई के बहकावे में न आने की अपील। 9 मई को चकतरा किला पर तोड़ फोड़ में मुलव्विस शरपसंद गौहर रहमान को गिरफ्तार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया। हुसैन है, मैं बटखेला करिया इश्यू गौहर मेरा बड़ा भाई जो 9 मई को वाक़या हुआ है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मेरा भाई जो 1 साल से इमरान खान की तकरीर सुन रहा था और यहाँ के लोगों के बहकावे में आया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इमरान खान के बातों में ना आए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। कैप्टन काजी जवाद ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जवां मर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा कहती हैं कि पाक फौज की तंसीबात को तोड़ना और जलाना इंतहाई दुख की बात है। सारे वाकयात हुए हैं, ये जो आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। वो इसलिए रोई हूँ कि मुझे इतना दुख था कि मैंने कहा देखो हमारे मासूम बच्चे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी दिन रात हिफाजत करते हैं, हम लोग चैन की नींद सोते हैं। और मेरे बेटों ने, मेरी जैसी कई माओं के बेटों ने अपना खून बहा, इस ज़मीन में, पाक सरजमीन में अपना खून शामिल किया। तो इन लोगों को इतना एहसास नहीं कि कम से कम शहीदों की कदर कर लेते, उनके खून का एहसास कर लेते, हम माओं का एहसास कर लेते कि जिन्होंने अपने जिगर गोशे भेजे हैं। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि दामाद भी शहीद हुआ, बेटा भी हुआ, लेकिन पुत्र जहाँ तक जुदाई की बात होती है ना, तो एक चीज़ जब हमें नज़र नहीं आती ना, और वो भी ख़ास तौर पे औलाद, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अल्लाह का शुक्र पढ़ती हूँ कि शहीद हुआ है। शहीद लफ्ज़ में इतनी पावर है कि शायद ये इस एक लफ्ज़ ने हमें हौसला दिया हुआ है। आप यकीन करें, जब बैठती हूँ सुबह तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरी रील चल रही है, एक फिल्म मेरे दिमाग में चलती है, उसके पैदा होने से लेके शहीद होने तक, एक एक लम्हा, एक एक चीज़, एक एक बात याद आती है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा से पहले भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 85 इजाफी कंपनियां तैनात की जा रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकाम ने बताया कि वादी में 6 खवातीन कंपनियां भी तैनात की जा रही हैं। 75 कंपनियां जिला गांदरबल और जिला बांडीपुरा में तैनात की जा रही हैं, जबकि बाकी 10 कंपनीज जम्मू में तैनात की जा रही हैं। इससे पहले काबिज हुकाम ने इलाके में 60,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का ऐलान किया था। मकबूजा इलाके में हज़ारों वालिदैन
जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से अपने बेटों से महरूम हो चुके हैं। KMS की तरफ से वालिद के आलमी दिन पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खत्म ना होने वाली रियासती दहशतगर्दी से इलाके में 1,07,903 बच्चे यतीम और 23,000 के करीब खवातीन बेवा हो चुकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल, दौरान हिरासत तशद्दुद और जबरी गिरफ्तारियां एक मामूल बन चुका है। मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी फाहद शाह की गैर कानूनी नज़रबंदी के 500 दिन मुकम्मल हो गए हैं। भारतीय पुलिस ने उन्हें गुज़िश्ता साल 4 फरवरी को पूछगछ के नाम पर पुलवामा के एक पुलिस स्टेशन में बुलाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। फाहद शाह उस वक्त जम्मू की कोट भलवाल में जेल में नजरबंद हैं। और यही नहीं, भारतीय अफवाज में खुदकुशियां अरूज पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज में खवातीन अफसरान भी खुदकुशी पर मजबूर हैं। हर तीसरे रोज एक खुदकुशी, जबकि सालाना 100 से जायद खुदकुशी के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें अक्सर मकबूजा जम्मू कश्मीर में होते हैं। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 3,300 से जायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सिर्फ पिछले 5 सालों में 800 से जायद भारतीय जवानों ने बाला अफसरान के रवैये से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। रवां बरस 23 जनवरी को कर्नल खन्ना ने खुदकुशी की, जबकि 9 जनवरी को फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल निशांत ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। 2006 में लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती अपने अफसरान के रवैये से तंग आकर भर्ती के सिर्फ 10 माह बाद ही अपनी जान ले बैठी। सुष्मिता के मुताबिक बाला अफसरान उसे रात गए डांस पार्टीज और नाजायज मुतालबात के लिए मजबूर कर रहे थे। अक्टूबर 2019 को पूना में लेफ्टिनेंट कर्नल रश्मि मिश्रा ने दुपट्टे से फंदा डालकर, जबकि दिसंबर 2016 में जम्मू में मेजर अनीता कुमारी ने सर पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया था। 2007 में कैप्टन नेहा रावत की जानिब से अपने मेजर जनरल लाल पर जिनसी हरासगी का इल्जाम आयद किया गया था। 2007 से अब तक भारतीय फौज में खवातीन अफसरान के साथ ज्यादती और जिनसी हरासगी के 1,243 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि हुकूमती टीम की काविशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। जिला खैबर के इलाके जमरूद में पार्टी कारकुनों और मीडिया से बातचीत करते हुए अमीर मुकाम ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करके सूबे और मरकज में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि शाहजी गुल आफरीदी और उनके कारकुनों की शमूलियत से सूबे में मुस्लिम लीग नून मजीद मजबूत होगी। हम इंशाअल्लाह ताला हर नशिश से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर का निशान और मुस्लिम लीग का निशान हर नशिश पर मौजूद होगा। और हमें ये फख्र है जो हमारी लीडरशिप है। अगर इस सूबे में मुश्किल आया, सैलाब आया, तो शहबाज शरीफ साहब बनफ्स नफीस हर जिले में हर जगह पहुंच गया और KPK की आवाम के साथ खड़ा रहा। इसके दूसरे इश्यूज आए, सब्सिडाइज आटा दिया, अरबों के रुपए की सब्सिडी KP को दी, और फिर रमजान में 20 अरब रुपए देकर इस सूबे के अवाम को तारीख में पहली दफा मुफ्त आटा भी दिया। कि वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में गैस फराहमी मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि 1 साल में हमने तबाहाल मुल्की मईशत को सहारा दिया और अवामी फलाह बहबूद के वो काम किए जो पौने 4 साल के अरसे में नाम नहाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत न कर सकी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अगर करप्शन, अकरबा परवरी, लूट मार के बजाय मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को ही जारी रखकर मुकम्मल कर लेती तो आवाम को तालीम, तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी और महंगाई का सामना न करना पड़ता। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने लोअर गलियात के 3 देहातों के लिए 6.5 किलोमीटर सुई गैस पाइपलाइन के मंसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के बाद तरक्की के रुके हुए पहिए को चलाया है। अवाम को सुई गैस की सहूलत की फराहमी एक ख्वाब था जिसमें आज सुर्खरू हुए हैं। जबकि वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने जंडियाला शेर खान में गैस फराहमी के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्की वक़ार में इजाफा किया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाकर नौजवानों के जहनों में जहर भर दिया। उन्होंने कहा कि एक मुतकब्बिर शख्स ने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे कायम किए। मुल्क को फिर से पांव पे खड़ा करना है। इस मुल्क से
महंगाई का खात्मा करना है, इस मुल्क को रोजगार आने वाली नस्लों को देना है, खुशहाल बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है और आने वाली नस्लों को दुनिया में सीना तान के वो कहें जिस जगह जाएं कि मैं पाकिस्तान से हूं। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कल से बेनज़ीर किफ़ालत की चौथी तिमाही किस्त जारी करेगा। वफाकी हुकूमत ने रवां साल के शुरू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% इजाफे का ऐलान किया था, जिसके बाद चौथी तिमाही किस्त 9,000 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए इन वज़ाइफ की अदायगी मुल्क भर में खुसूसी तौर पर कायम करदा 1559 कैंप साइट से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी ब्रजेश ताहिर ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने नाअहली का मुजाहरा करते हुए मुल्क में तरक्याती अमल रोक दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मुफाद में फैसले करते हुए माशी तबाही का अमल रोका, मेगा प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम का आगाज किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना मुबशर इकबाल ने अपने हल्का PP 132 में लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का विजन है और ये सिलसिला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी जारी है। मुआविन खुसूसी राना मुबशर इकबाल की जानिब से हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक के लिए अलग सूबे की बात की है। मुल्तान में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली से अलग सूबे के क़याम के लिए करारदादें भी पास करवाईं और इस मकसद के लिए कमीशन भी कायम किया। उन्होंने कहा कि PTI ने अपने दौर में जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सूबे पर सिर्फ सियासत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेस वे पर प्रोजेक्ट कराची की तरक्की में गेम चेंजर साबित होगा। कराची में ज़ेर तकमील मंसूबे के जायजे के मौके पर उन्होंने कहा कि 39 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे की तामीर पर 27 अरब रुपए लागत का तखमीना है, जिसकी तकमील से शाहराह फैसल पर ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। वज़ीर आला का कहना था कि मलीर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का प्रोग्राम है। निगरान खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें अगले माली साल के मुजव्वज़ा करंट और डेवलपमेंट अखराजात का जायजा लिया गया। निगरान काबीना की मंजूरी के लिए अखराजात से मुतालिक तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई। गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करने और सूबाई हुकूमत की आमदन में इजाफे के लिए कलील और तवील मुद्दती इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वरी काकर से दौरे ज़ियारत के दौरान अल जज़ीरा रेजिडेंशियल स्कूल के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने इदारे के नताइज और निसाब के बारे में ब्रीफ किया। गवर्नर ने तालीम के फ़रोग के लिए इदारे की कोशिशों की तारीफ की। इस मौके पर मकामी उमाइदीन के वफ़द ने भी गवर्नर से मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू इलाके के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से अपील करते हैं कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों को भी कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मैं समझता हूं कि जल्द अज जल्द ये सामने आनी चाहिए और इस तरह के जितने एजेंट हैं, हमारा मुतालबा है कि सबको गिरफ्तार किया जाए। सबके दफातर जो हैं मीडिया उनको नशर करे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के नौजवानों से खेलते हैं। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि उलमा इकराम ने हमेशा कौम के इत्तेहाद के लिए काम किया। हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। कौमी यकजहती अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है जिसे लाखों कुर्बानियों से हासिल किया गया। कॉन्फ्रेंस में दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि तमाम रियासती इदारे हमारे हैं और अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद का आलमी दिन मनाया गया। मकसद बाइज्जत और एक मुहज़्ज़ब दुनिया की तामीर और नफरत अंगेज गुफ्तगू और तकारीर के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए।
हेट स्पीचेस वही लोग करते हैं जो तकसीम का बीज बोना चाहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ हकीकी इशू से तवज्जो को हटाना होता है। नफरत फैलाने के अमल के खिलाफ आगाही को फैलाना इतना ही जरूरी है जितना कि सोशल मीडिया बटरफ्लाइज और हैंडलर्स पर नफरत को फैलाया जाता है। आज के इंटरनेट वेब के दौर में सोशल मीडिया भी नफरत अंगेज तकरीरों के लिए फर्टाइल ग्राउंड फराहम कर रहा है और यही ट्रेंड दुनिया में दूरियां बढ़ाने, तासुब, इम्तियाज और सबसे बढ़ के पुरतशद्दुद वाकयात का भी सबब बनता है। नफरत को अगर खत्म करना है तो तासुब पर नहीं, लासानियत पर नहीं, बात होनी चाहिए इंसानियत पर। नफरत इश्तियाल और इश्तियाल तशद्दुद की सिमत ले जाता है। सवाल यह है कि अब दुनिया को क्या करना है। ऐसा कोई स्विच बोर्ड नहीं कि बटन दबाया और नफरत से निजात मिल जाए, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने का आज़म हो तो ये भी मुमकिन नहीं कि नफरत के फैलाव को महदूद ना किया जा सके। सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं कि लोग नफरतों को बढ़ा रहे हैं, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, लिसानी तौर पर। इसके खात्मे के लिए हमें चाहिए कि हम मिलकर इंसानियत के लिए। सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के दौर में जब नॉर्थ और साउथ पोल्स और इक्वेटर के मशरिक और मगरिब के दरमियान फासले सिमटकर एक क्लिक तक आ गए, तो अब लाजमी ये भी है कि इंटरनेट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर इंसानियत, नस्ल परस्ती के खात्मे और सबसे बढ़कर इखलाकियात और इथिकल वैल्यूज को भी ज्यादा अहमियत दी जाए। डेमोक्रेसी राय की आज़ादी का हक देता है, लेकिन जमहूर का मतलब हरगिज ये भी नहीं कि नफरत के एहसास के साथ फर्द वाहिद या किसी कौम के खिलाफ रंग, नस्ल या अकायद की बुनियाद पर नफरत फैलाई जाए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने विजन 2030 के तहत मक्का मुकरमा में हिरावही म्यूजियम आवाम के लिए खोल दिया है। आज़मीन हज की बड़ी तादाद इस्लामी तारीख से रोशनास हो रही है। तफसील राना फहीम असलम से जानिए। कुरान पाक की अहमियत को उजागर करने के लिए सऊदी हुकूमत ने विजन 2030 के तहत मक्का मुकरमा में वही म्यूजियम कायम किया है। म्यूजियम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अदवार को बहुत मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया। वही म्यूजियम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत और उनको पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में दस्तावेजी फिल्मों के जरिए बताया गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल होने वाली पहली वही को वाक़याती अंदाज में दिखाया गया है। क़ब्ल अज़ इस्लाम अबराह का वाक़या, मक्का के हालात और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी को भी मुख्तलिफ अंदाज में फिल्माया गया है। हय्यु हिराइन अल-थक़ाफ़ी मक्कतुल मुकर्रमा फ़अला क़िम्मति जबल हिरा بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصولا إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم। वही म्यूजियम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का हुजरा भी दिखाया गया और उनके हजूर पर ईमान लाने से मुतल्लिक कलमात भी दर्ज हैं। म्यूजियम में कुरान पाक के पहले नुस्खे की कॉपी मौजूद है। ज़माना नबूवत में जिन चीज़ों पर आयात लिखी जाती थी उनको भी दिखाया गया है। पाकिस्तानी खातून नसीम अख्तर के हाथों से 32 साल में कढ़ाई किया हुआ कुरान पाक का नुस्खा भी म्यूजियम में रखा गया है, जो एक एजाज की बात है। सऊदी हुकूमत की तरफ से गारे हिरा के नज़दीक ये म्यूजियम बनाया गया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि वही कैसे आई थी, सारे मंजर कशी की गई है, जो कि नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है, जो किताबों से दूर हो चुके हैं, तो उनके लिए मल्टी मीडिया पे ये म्यूजियम जो है बहुत ही खुश आइंदा। सऊदी हुकूमत ने विजन 2030 के तहत तामीर शुदा म्यूजियम में गारे हिरा का मॉडल भी बनाया है ताकि दुनिया भर से आने वाले मुसलमान वही के नज़ूल की तारीखी अहमियत से रोशनास हो सके। ये वो मकाम है जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, गारे हिरा, मक्का मुकरमा। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में भी 46, सरगोदा 42, फैसलाबाद 41, जबकि मुल्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 39, کراچی 35, پشاور 42, جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی اب تک کی صورتحال. السلام علیکم. کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. ناظرین، کھیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جرمنی میں 26ویں اسپیشل اولمپک گیمز کا میلہ سج گیا. برلن میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی. بین الاقوامی سپورٹس ایونٹ میں 190 ممالک سے 7000 سے زائد ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں. 25 جون تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 26 مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. افتتاحی تقریب میں پاکستانی ایتھلیٹ ثنا مشعل برادر کھلاڑیوں میں شامل تھیں. قومی دستے نے ثقافتی لباس پہن کر تقریب میں شرکت کی. اولمپیاڈ اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. وفد میں 54 مرد اور 33 خواتین کھلاڑی شامل ہیں جو 11 کھیلوں میں حصہ لیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپیشل اولمپکس گیمز میں حصہ لینے والے خصوصی افراد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ یقین ہے کہ خصوصی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں اور عزم کے ذریعے مادر وطن کا نام روشن کریں گے. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مالدیپ میں 5 ملکی انٹرنیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ جاری ہے. پاکستان نے آخری لیگ میچ میں بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. گرین شرٹس نے 66 کے مقابلے میں 84 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی. زین الحسن خان، عمیر جان نے 19-19 جبکہ عبد الوہاب نے 16 پوائنٹ سکور کیے. پاکستان کی ایونٹ میں مسلسل تیسری فتح ہے. سیمی فائنل مقابلے منگل کو کھیلے جائیں گے. کشمیر پریمیئر فیڈر لیگ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی کر دی گئی ہے. کے پی فیڈر لیگ 18 سے 27 جون تک مظفر آباد میں جاری رہے گی. رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان. مظفر آباد میں یادگار شہدا پر کشمیر پریمیئر فیڈر لیگ ٹرافی کی رونمائی کی گئی. کشمیر پریمیئر فیڈر لیگ میں شامل آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کی ٹیموں کی کٹس کی رونمائی بھی کر دی گئی. کشمیر پریمیئر فیڈر لیگ میں آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کی ٹیموں کے مابین کرکٹ مقابلے ہوں گے. بہترین کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کو کشمیر پریمیئر لیگ کے سیزن 3 میں سلیکٹ کیا جائے گا. ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس سے جو ہمارے ادھر آزاد کشمیر کا جو لوکل ٹیلنٹ ہے وہ یہاں سے ابھرے گا. کے پی ایل ہے اور پھر فیڈر لیگ ہے، اس سے جو آزاد کشمیر کی خوبصورتی ہے اس علاقے کی اور اس علاقے کا جو ایک رچ کلچر ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ دنیا تک وہ پہنچے گا. جو لڑکا پرفارم کرے گا وہ کے پی ایل کی جو ڈرافٹ ہوگا اس میں شامل ہوگا. کشمیر پریمیئر کرکٹ فیڈر لیگ 18 تا 27 جون جاری رہے گی. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. عدیل احمد خان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.